So the next question is gravitation force is a short range force, long range force, both or none. तो second आ जाएगा इसमें. Next is effect of gravitation force is experienced only when distance is small, distance is large, both. तो both आ जाएगा. Electric force is weaker than stronger than gravitation force, तो stronger होता है. Second will be correct option. Gold leaf electroscope is an apparatus to detect. ये आ जाएगा charge on electroscope. Next is यहाँ पे a gold leaf electroscope consists of vertical metal rod, box, two thin gold leaves. तो इसमें all आ जाएगा. Fourth will be the correct option. Next is in a gold leaf electroscope the leaves are attached to top या bottom. तो ये bottom आ जाएगा. Second will be the correct option. Next is when a charged object touches the metal knob at the top of the gold leaf electroscope, then the gold leaves converges or diverges. तो diverge हो जाएगा क्योंकि same charge आएगा तो एक दूसरे को repel करेंगे, so it will diverge. Next is in the above question degree of divergence is a measure of assuming mass to be constant. So this is a measure of charge. Larger the amount of charge, larger will be the degree of divergence. So first will be the correct option. Next is figure shows a gold leaf electroscope. 1, 2, 3 represents. So here one is the metal knob, 2 is the glass window, and 3 represents the rubber. So second will be the correct option here. Next is in the above question 4 and 5 represents. So 4 is the gold leaves and 5 represents the metal rod. So second will be the correct option here. Next is ये आपको डायग्राम दिया हुआ है. इफ द रोड इज मेड टू टच द मेटल रोड, तो रोड पॉजिटिव है तो मेटल रोड को जब टच करेगी तो कंडक्शन के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज गोल्ड लीव्स पे ट्रांसफर हो जाएगा. मेटल रोड विल रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज, गोल्ड लीव्स विल रिक्वायर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन विल लीव गोल्ड लीव्स या ऑल ऑफ दीज. तो इसमें आप देखिए अगर ये पॉजिटिव रॉड है और इसको आप मेटल नोब के साथ टच करेंगे तो मेटल नोब में क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसको अट्रैक्ट करेंगे. तो जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल नोब से रोड पे आ जाएंगे तो मेटल रोड पे चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा. मेटल रोड से कनेक्टेड है गोल्ड लीव्स, तो गोल्ड लीव्स पे भी चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स लीव करेंगे. सो फोर्थ विल बी द करेक्ट ऑप्शन हियर. So 71st का fourth will be the correct option. Next is in the above question, if the rod has a negative charge, then metal rod will require negative charge, metal rod will require negative charge, gold leaves will diverge. All of these. तो इसमें भी क्योंकि similar ही है तो तीनों option correct होंगे. So fourth will be the correct option here. Next is figure shows the schematic diagram of a simple electroscope. 1, 2 and 3 represents. So simple electroscope अपन ने यूज किया. So यहाँ पे 1 जो है वो एल्युमिनियम नॉब है, 2 is the aluminum foil and 3 represents the bottle. So first will be the correct option here. Next is in a simple electroscope, a paper scale can be used to measure separation of leaves, measure length of bottle, measure height of bottle. So इसमें आपका सेपरेशन को लीव्स के सेपरेशन को मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है एज पर द एनसीईआरटी लाइन. सो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज इफ अ वाइट पेपर इज आयरन्ड and made into 2 halves by folding, then these halves will show. तो repulsion होगा क्योंकि same nature है charges का, so they will repel each other. So second will be the correct option. Next is the above experiment shows that paper has acquired charge on ironing, paper has lost charge on ironing. तो it has acquired charge, तभी वो diverge हो रहे हैं. तो first will be correct option. Next is the effect taking place in a leaf electroscope is electrostatic attraction या electrostatic repulsion, both or none. सो इसमें सेकंड विल बी करेक्ट क्योंकि रिपल्शन की वजह से लीव्स डाइवर्ज होते हैं. तो सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज ऑन चार्जिंग द कर्टेन रॉड बाय टचिंग द बॉल एंड विद एन इलेक्ट्रिफाइड बॉडी, चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू कर्टेन रॉड
या चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द एल्युमिनियम फॉइल, बोथ और नन। तो इसमें है कि जब हम इसको टच करेंगे तो दोनों में ही चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज in the above question both the halves of foil get similar charges and hence repel, तो फर्स्ट विल बी करेक्ट क्योंकि इन पे सिमिलर चार्ज आएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम मोलिक्यूल्स बोथ, तो थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज नॉर्मली द मटेरियल्स आर इलेक्ट्रिकली, तो नॉर्मली न्यूट्रल होते हैं, सो थर्ड वन विल बी करेक्ट ऑप्शन। Next is normally materials do not contain charges, their charges are exactly balanced, both or none, so third will be the correct option. Next is which of the following are electromagnetic forces? Forces that hold the molecules together. Next is forces that hold atoms together. Next is adhesive forces of glue, surface tension, all of these, तो ये सारे के सारे electromagnetic होते हैं, so fourth will be correct option. Next is choose the correct statement. Electric forces is all pervasive, encompasses each and every field associated with our life, both or none, so both will be the correct option क्योंकि हमारे लाइफ में जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ही डोमिनेट करते हैं। नेक्स्ट इज टू इलेक्ट्रीफाई अ न्यूट्रल बॉडी वी नीड टू ऐड वन काइंड ऑफ चार्ज, वी नीड टू रिमूव वन काइंड ऑफ चार्ज, बोथ और नन, सो थर्ड आ जाएगा। आप चाहे चार्ज को ऐड करें या रिमूव करें, दोनों ही केसेस में न्यूट्रल बॉडी पे चार्ज आएगा, so third will be the correct option. Next is when we say that a body is charged, we refer to excess charge, deficit of charge, both or none. So body is charge में जो है we refer to the excess charge और the deficiency of charge, क्योंकि कोई भी बॉडी है अल्टीमेटली उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो होते ही हैं। तो जब हम कहते हैं कि कोई बॉडी चार्ज है तो इसका मतलब है या तो हम एक्सेस चार्ज की बात कर रहे हैं या डेफिशिएंसी ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन सॉलिड्स द चार्जेस व्हिच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर आर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑब्वियसली लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Next is a body can be positively charged by making it lose electron or gain electron, तो lose electron आ जाएगा, first will be the correct option. Next is a body can be negatively charged by making it lose electron or gain electron, तो second will be the correct option. Next is when we rub a glass rod with silk, electron gets transferred from glass rod to silk, तो जब हम ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करेंगे तो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसका मतलब ग्लास रोड से ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट विल बी द फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन ग्लास रोड गेट्स, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन दी अबव क्वेश्चन सिल्क गेट्स, तो सिल्क पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, सेकंड विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग न्यू पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड, न्यू नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड, नो न्यू चार्ज, तो न्यू चार्ज इज नॉट क्रिएटेड, जो चार्जेस हैं पहले से वही ट्रांसफर हो रहे हैं, सो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Next is in the process of rubbing number of transferred electrons are a very large fraction या very, तो बहुत ही small fraction जो है वो ट्रांसफ़र होता है, क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं, केवल जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वही इसमें ट्रांसफ़र होते हैं, सो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन ओनली टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड या लूजली बाउंड, तो ऑब्वियसली लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं मूव करने के लिए वही ट्रांसफर होते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन अ बॉडी इज रब्ड विद अनदर बॉडी द बॉडी गेट्स चार्ज, द बॉडी डू नॉट गेट चार्ज, वी हैव टू स्टिक टू सर्टेन पेयर फॉर ऑब्जर्विंग दिस, सो बोथ 1 and 3, तो ये इसमें वी हैव टू स्टिक टू सर्टेन पेयर्स, क्योंकि कुछ ही पेयर्स हैं जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग शो करते हैं, सो इसमें थर्ड